Hello students, today we are going to take up the unit 2 speed and velocity for class 7 physics. We have already done rest and motion chapter. If you haven't seen the video, I'll share the link above. Go through that so that you can have the understanding of that. अब आपके पास कोई भी बुक हो, कंसेप्ट सेम रहता है. आई एम यूजिंग द बुक विच आई एम हैविंग. You might be having the book of any other author, fine. So it hardly matters. If you are well versed with the concept, it is going to help you out with any of the book. Okay, so don't worry about the book, just concentrate on the concept. So here the topic is speed and velocity. Speed जो आपका topic है, this you have learned in your prior classes also, and in maths also we are using this calculating the speed earlier. Fine. So speed होता क्या है? It is the rate of change of motion. जो हमारी motion है वो किस तरीके से change हो रही है उसको speed बताती है. अब speed को हम calculate कैसे करते हैं? Distance covered by the object. एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया है. अगर हम स्पीड को लिखते हैं v, इफ़ आवर स्पीड इज़ v एंड डिस्टेंस इज़ s एंड टाइम इज़ t, फाइन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर द स्पीड. सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन. मोशन किस तरीके से हमारी चेंज हो रही है. अब डिस्टेंस को किस में लेते हैं हम? मीटर में, और टाइम को सेकेंड में. फाइन. सो मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ दिस स्पीड. फाइन. सो SI यूनिट के बारे में हमने क्या सीखा? दैट मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड. नाउ कम्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर इक्वल डिस्टेंस, जैसे अब अगर हम इसको देखते हैं 30 किलोमीटर 1 hour, here it is 1 hour, again 30 kilometer 1 hour, fine. So that means 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 hour में यहाँ भी उसने कवर किया and here also. So equal distance is being covered in equal amount of time, equal interval of time, then it is called as uniform speed. और अगर equal interval of time में unequal distances वो कवर करता है, लाइक पहले 1 hour में उसने 40 किलोमीटर कवर किया, देन नेक्स्ट 1 hour में 20, नेक्स्ट 1 hour में 30. सो डिस्टेंसेस जो हैं वो अलग अलग हैं. सो इन दैट केस द स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड. देन कम्स एवरेज स्पीड. अब हम मोस्टली स्पीड को एवरेज की फॉर्म में लेते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रैफिक रोड, then what happens? Sometimes you are moving at a higher speed or sometimes you are moving at a lower speed. So हम बोलते हैं एवरेज स्पीड की यहाँ पर बात आ जाती है. अब वो एवरेज स्पीड होती क्या है? तो व्हाट इज आवर एवरेज स्पीड? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड. दैट मीन्स फर्स्ट आवर में आपने 30 किलोमीटर अगर किया है, सेकेंड आवर में 20, थर्ड आवर में 40, फाइन, over total time. So it will be 30 plus 20 is 50 plus 40 90 upon 3, which is 30 kilometer per hour if we are taking in kilometer per hour. So this is the total distance covered upon total time taken. That is how you are going to calculate the average speed of anything. Fine. The next thing that comes here is velocity. अब स्पीड में प्रॉब्लम क्या है? इफ यू आर सेइंग 30 किलोमीटर पर आवर, दिस इज नॉट शोइंग अस द डायरेक्शन. द वन मेजर कंपोनेंट which is missing here is direction. That portion is being covered in velocity. Velocity is also the rate of change of motion. Same है आपका velocity भी. Velocity is also rate of change of motion, but the difference is in a specified direction. So speed और velocity में यही difference है. जो speed है सिर्फ हमें rate of change of motion के बारे में बताती है,
बट वेलोसिटी है जो है दैट इज टेलिंग अस अबाउट द डायरेक्शन, कि जो चेंज ऑफ मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है या ईस्ट वेस्ट में है. सो इट विल स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑल्सो. नाउ द काइंड ऑफ वेलोसिटी when a body covered equal distance in equal amount of time, जैसे हमने अभी स्पीड में पढ़ा था, equal distance in equal amount of time in a particular direction, then it is called as uniform velocity. Fine. So equal distance in equal amount of time and in the same direction, that is your uniform velocity. Fine. In this then comes variable velocity, when any body is moving unequal distances in equal interval of time. इक्वल डिस्टेंसेस हुआ तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अनइक्वल डिफरेंट अगर डिस्टेंस कवर वो करता है इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स बट द डायरेक्शन चेंजेस. फाइन. या तो डिफरेंट उसके डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस अलग अलग हैं और डायरेक्शन अलग अलग है. दोनों ही केस में जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी. सो इसमें दो केसेस हैं, एक वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है टाइम इंटरवल्स बट उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तब भी जो वेरिएबल वेलोसिटी है. और अगर डायरेक्शन सेम है, टाइम भी सेम है बट द डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल वेलोसिटी. देन कम्स योर एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड by total amount of time. So it is the average displacement of a body per unit time when it is moving with variable velocity. So total displacement over total time, that is your average velocity. अब speed और वेलोसिटी के बाद इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज़ मास एंड वेट. जैसे थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में है, बोथ आर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, लेकिन स्पीड से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है बट वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है. सेम वी हैव टू थिंग्स, मास एंड वेट, जिसको हम हमेशा एक ही तरीके से यूज़ करते हैं. अब हम इन जनरल लाइफ में भी कह देते हैं इसका वेट क्या है या इसका मास क्या है. वी थिंक बोथ दीज टर्म्स आर सेम बट नो, दीज टू टर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. लेट्स सी हाउ दे आर डिफरेंट. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. उस बॉडी में कितना मैटर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मास. फाइन. सो मास को हम किससे मेजर करते हैं, या तो बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से. यू कैन सी दिस इज द फिजिकल बैलेंस. एक साइड हम वेट रखते हैं, एक साइड हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हमें मास निकालना है. फाइन. एंड हाउ वी आर, व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज किलोग्राम. सब मल्टीपल्स मतलब छोटे उसके यूनिट्स जो हैं दे आर ग्राम एंड मिलीग्राम. इफ यू वांट टू वे find out the mass of the gold or the silver, then we go for milligrams, and then we have grams also. Fine. And multiples मतलब बड़ी यूनिट्स उसकी हैं क्विंटल एंड मीट्रिक टन. 100 kg is equal to 1 quintal, 1000 kilogram is equal to 10 quintals. Fine. And this you already know, 1 gram is equal to 1000 milligram. Now comes weight. अब वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जिससे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी साइड पुल करती है. यू नो दैट देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. फाइन. सो वो जो जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर सबको अट्रैक्ट करती है दैट इज टुवर्ड्स इज सेंटर, दैट इज योर वेट. सो मास हमारा था अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, जबकि वेट है एक फोर्स विद विच अर्थ पुल्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जिससे अर्थ अपनी तरफ सबको पुल करती है. फाइन. इसको हम मेजर कैसे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से. उसको हम फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस से मेजर कर रहे थे बट इसे वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं. उसकी यूनिट क्या थी? किलोग्राम. और इसकी होती है केजीएफ, किलोग्राम force or gram force. 1 kilogram force is the force with which earth attracts a mass of 1 kg. 1 किलोग्राम के वेट को, 1 किलोग्राम के मास को जब अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज 1 kgf.
फाइन, इसको हम न्यूटन में भी, यू नो दैट इट्स अ फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन. सो इसको हम न्यूटन में भी मेजर करते हैं. द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन द अर्थ पुल्स अ मास ऑफ 100 ग्राम. 100 ग्राम का अगर कोई मास है, उसको जिस भी फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन. नाउ कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कितना मैटर उसके अंदर है. और ये क्या होती है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. एक ऐसी फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ. फाइन. मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 4 kg 5 kg. जो वेट है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज हो जाती है एट डिफरेंट प्लेसेस. फाइन, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है. मास ऑफ द बॉडी इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, और इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से. SI यूनिट इसकी किलोग्राम है, उसकी न्यूटन है. मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो. मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. वेट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो इफ नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट. क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है ना. एक्सेलरेशन अगर जीरो है, मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा. लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस केस में आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगी. फाइन. Thank you. Thanks for watching. If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button.